السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 107 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ یونس، آیت 61 سے آیت 89 تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو طالب علم کے دوران موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف نبوت کے ایک درجے کا فرق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو طالب علم کی کتنے زیادہ فضیلت ہے نا، کتنے فوائد ہیں، کتنے فائدے ہیں کہ اگر انسان اس نیت سے اس نے اپنی زندگی لگا دی کہ ہم انشاءاللہ ہمیشہ اللہ کی اس قرآن کریم کو پڑھتے رہیں گے، تدبر کرتے رہیں گے، کہیں نہ کہیں وہ اللہ کے دین سے، قرآن سے، سنت سے جڑا رہا، تو اس درمیان اگر اس کو موت آتی ہے تو کیا ہوگا کہ بس نبیوں کے درجے سے ایک درجہ تھوڑا سا فرق ہوگا بس۔ تو سبحان اللہ، طالب علم کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی درجات میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ یونس، آیت نمبر 61 to 89۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہیں، اور لوگوں کو جو تم جو بھی کام کرتے ہو، تو جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور تمہارے رب کی کوئی بھی ذرہ کسی چیز کا بھی کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، یعنی تمہارے رب سے کوئی بھی ذرہ برابر کوئی چیز بھی کیا ہے، چھپا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ اس سے کوئی چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 61 میں فرمایا ہے کہ تلاوت قرآن دراصل کیا ہے، ایک محبوب عمل ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی حال میں نہیں ہوتے ہیں، اور اے لوگوں، تم کوئی بھی عمل نہیں کرتے ہو مگر اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کو رسول کے ہر حال کی جو ہے خبر ہے، اور جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان تمام کاموں کا جو خبر اللہ کو ہے۔ خاص طور پر ایک عمل کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے تلاوت قرآن ہے نا۔ تو اللہ کو یہ عمل انتہائی پسند ہے، اس کا کوئی بھی بندہ مگر مصروفیات دنیا کو چھوڑ کر نا اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن کے بارے میں یہاں پہ آیا ہے نا، وما تتلو منہ من قرآن، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تلاوت قرآن اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ تمام مخلوقات کے حال سے، اور ہر انسانوں کے جو لمحہ ہے، جو سیکنڈ جو وہ گزار رہے ہیں، جن کاموں میں بتا رہے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ کو خبر ہے۔ زمین آسمان کی کوئی بڑی سے بڑی چیز اور چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے، اور یہ مضمون ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 59 میں بھی۔ تو یہاں ایک نئی چیز پتہ چلتی ہے، بات کہ اللہ کو جو قرآن کریم ہمارا پڑھنا ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کو اس کو پسند ہے، اللہ کو تلاوت قرآن بہت پسند ہے، محبوب ہے، تبھی تو خاص کر کے ذکر فرمایا ہے یہاں اس آیت میں۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 62۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
जो भी अल्लाह के दोस्त हैं, ना उनको कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। तो आयत नंबर 62 से आयत नंबर 65 तक 5 तक की अल्लाह के जो दोस्त कौन है उनके बारे में बताया गया है, उनकी सिफ़ात के बारे में बताया गया है, उनके अजर बताया गया है। इन आयत में अल्लाह तबारक तआला ने अपने दोस्त जो है, जो दोस्त है ना, यानी अल्लाह के जो वली हैं, और वो कौन लोग होंगे? वो पाक-बाज़ हस्तियाँ जो होंगी, जो ईमान और दौलत की सआदत से वो दौलतमंद होंगी, जिनके पास ईमान और तक़वा होगा, तो वही लोग क्या हैं? अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। तो यहाँ जो अल्फ़ाज़ आया है, इन्ना औलिया अल्लाह, तो अल्लाह के जो दोस्त होते हैं, तो कौन होते हैं? उनके बारे में बताया गया है कि वो लोग ऐसे हैं जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार करते हैं। तो औलिया का जो अल्फ़ाज़ आया है, तो औलिया वली की जमा है, जिसके माने लुग़त में करीब के हैं, ठीक है? तो औलिया यानी इसके माने क्या है? करीब के हैं, यानी करीब करने के हैं। तो इस एतबार से औलिया अल्लाह के माने होंगे वो सच्चे और मुख़लिस मोमिन, जिन्होंने अल्लाह की इताअत और नाफ़रमानी से बच-बच कर के अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर लिया हो। इसलिए आयत में खुद अल्लाह तबारक तआला ने उनकी जो है तारीफ़ फ़रमाई है, और उन अल्फ़ाज़ में बयान फ़रमाई है कि जो ईमान लाए और जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, आयत नंबर 63 में उनकी तारीफ़ फ़रमाई है। और ईमान और तक़वा ही अल्लाह के क़ुर्ब और बुनियादी अहम तरीन क्या है? ज़रिया है। इस लिहाज़ से हर मुत्तक़ी मोमिन अल्लाह का वली है। जो ईमान लाया, जो डर-डर के ज़िंदगी गुज़ारता है, तो वो क्या है? अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह उसका दोस्त हो जाता है ना। तो आप देखिए कि लोग समझते हैं कि अल्लाह के वली जो होते हैं कुछ स्पेशल होते हैं, उनके पास कुछ वो ऐसे करामात दिखाते हैं, ऐसे जो है ना, ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, ऐसी चीज़ें ज़ाहिर करते हैं कि जिससे लोग दंग रह जाते हैं, यानी कि वो आस्तीनों से छुआरे निकाल दें या दूध निकाल दें, उँगली से दूध ज़ाहिर कर दें, तो वही वली होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह के वली ऐसा कुछ नहीं करते हैं, दरअसल उनकी क्या ख़ास सिफ़ात है? कि वो ईमान और तक़वे वाले होते हैं। अव्वल नंबर पर वो ईमान लाते हैं, तौहीद उनके अंदर कहीं दूर-दूर तक नहीं होता है। किसी भी कोई भी फ़ील्ड, कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी उनके अंदर जो है ना, शिर्क नहीं होता है, शिर्क की मिलावट उनके दिलों में नहीं होती है। उनका दिल क्या होता है? छिपी और ज़ाहिरी बीमारियों से पाक साफ़ होता है, और उनकी जो ज़िंदगी जो गुज़ारते हैं, वो तक़वा के बिना पर गुज़ारते हैं, यानी कि अल्लाह से डर कर अपने सारे काम और मामलात करते हैं। तो ये कौन होते हैं? वो अल्लाह के वली होते हैं। तो आयत नंबर 63 देखते हैं। आयत नंबर 62 ही में देखिए अभी, कि आप देखिए कि जब अल्लाह के जो दोस्त बन जाता है ना, तो फिर आपको लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो लोगों का जो डर दरअसल क्या होता है, असल में वो निकल ही जाता है उस वक़्त, कि जब इंसान अल्लाह से वो डरता है, जब अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है ना, अल्लाह से जो है डर के ज़िंदगी गुज़ारता है, क्योंकि आपका जो फ़ोकस है ना, वो बदल गया है। आप हर चीज़ अल्लाह के डर से कर रहे हैं कि हमें वो कहीं ऐसा ना हो अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए। और पूरी एनर्जी उसी पर भी लग जाएगी इंसान की। तो हर चीज़ फिर क्या होती है, सीधी होने लग जाती है, और आखिरत का अंजाम भी बहुत अच्छा और बेहतरीन हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदों में से कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो ना नबी होंगे ना शहीद होंगे, मगर क़यामत के रोज़ अल्लाह के यहाँ बुलंद मरातिब और मनाज़िल की वजह से अम्बिया शुहदा भी उनके ऊपर रश्क करेंगे। सहाबा जो है ना, बहुत ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन चीज़ों के मामले में दरियाफ़्त करते थे। तो फिर उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताइए कि वो लोग कौन होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे कि जो आपस में अल्लाह की किताब यानी कुरान करीम की वजह वजह से आपस में उनकी मोहब्बत थी, मोहब्बत करते थे एक-दूसरे से। तो हालाँकि उनका आपस में कोई रिश्ता भी नहीं था, कोई माली लेन-देन भी नहीं था। अल्लाह की कसम, उनके चेहरों पर नूर होंगे, और वो लोग नूर पर जो है ना सवार होंगे, यानी कि नूर के मिंबरों पे सवार होंगे। उस वक़्त जब लोग जो है, जिनके चेहरों पर क्या हवाइयाँ उड़ी होंगी, लेकिन उस वक़्त उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। जब लोग गमगीन और परेशान रहे होंगे, तो उन्हें कोई भी गम और परेशानी नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसी आयत को तिलावत फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस 3529 है, इसका नंबर। तो आप देखिए, जो आपस में अल्लाह की किताब की बिना पर मोहब्बत करते हैं ना, तो खुश हो जाइए, क्योंकि जो आपस में अल्लाह की किताब की वजह से मोहब्बत करते हैं ना, तो हालाँकि उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं होता है, कोई माली लेन-देन, कोई बिज़नेस, कोई तिजारत नहीं होता, ना कोई ख़ानदानी रिश्तेदारी होती है, ना कोई भी ऐसी कोई कनेक्शन होता है। सिर्फ़ अल्लाह की किताब यानी कि उनके
बीच में जो करेक्शन की वजह क्या है? कॉमन फैक्टर, यानी कि अल्लाह की किताब पढ़ने की वजह से उनकी आपस में दोस्ती और मोहब्बत हो गई। तो अल्लाह की कसम, उनके चेहरों पर नूरानी होगा, वो लोग नूर के मेंबरों पर होंगे। जब लोग जब सारी दुनिया के जो लोग हैं गमगीन होंगे, तब उनके ऊपर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। तो इससे क्या पता चलती है कि जो कुरान पढ़ने वाले होते हैं ना, तो वो अल्लाह के क्या होते हैं? वली होते हैं, और उनकी आपस में मोहब्बत की वजह से उनकी आखिरत में दर्जात की बुलंदी का बायस बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको इनमें शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत देखिए, आयत नंबर 63। उनके लिए खुशखबरी है, दुनियावी ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला की बातों में कोई तब्दीली नहीं होती। यही ज़बरदस्त कामयाबी है। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, यानी अल्लाह के जो अल्लाह ने वादे किए हैं, उन वादों को पूरा होकर रहेंगे वो वादे। यानी अल्लाह ने जो अपने वादे किए हैं मोमिन बंदों के साथ में, यानी उनके लिए जन्नात है, बागात हैं, उनको हमेशगी की ज़िंदगी है, और जो भी वादे हैं अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों से किए हैं, वो सारे के सारे पूरे किए जाएँगे। उनमें कोई तब्दीली नहीं है, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। आइए देखें आयत नंबर 64। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जो बातें बनाते हैं वो तुम्हें रंजीदा ना करे। यकीन रखो कि गलबा और ताकत का पूरा अल्लाह है। गलबा और ताकत पूरा का पूरा अल्लाह के लिए है, और वो हर बात सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, वला यहज़ुन का कौलहुम, और ना गमगीन करें आपको उन लोगों की बातें और उनकी कौल। इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ, बेशक सारी की सारी इज़्ज़तें और कुदरतें और ताकतें और कुव्वतें किसके लिए हैं? सब के सब अल्लाह के लिए है। वो सब कुछ सुनने वाला है और सब कुछ जानने वाला है। ठीक है? तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा इंसान को तकलीफ़ कब पहुँचती है? जब लोग अजीब-अजीब बातें करते हैं ना, जब इंसान सच पर होता है, हक़ पर होता है, लेकिन रिश्तेदार उसको बातें सुना रहे होते हैं, रिश्तेदार उसको जो है भला-बुरा कह रहे होते हैं, उसके अपने ही जो लोग, एक वक़्त था कि उसके बुराई पर वो खुश थे, लेकिन जब आज वो नेकी की डगर पे चल पड़ा है, तो वही रिश्तेदार, वही कुनबे-कबीले, आपस वाले रिश्तेदार, वही सब भला-बुरा कहते हैं। तो इंसान बहुत रंजीदा और गमज़दा होता है। सेम यही कंडीशन आप वसल्लम की भी थी। उनको भी उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं की बस्ती वाले, उन्हीं के कौम वाले तकलीफ़ पहुँचाते थे। यहाँ तक तकलीफ़ भी नहीं पहुँचाई, इनको बहुत ज़्यादा ज़ुल्म भी ढाया उनके ऊपर। हैं? तो आज अगर हम कुरान के रास्ते पे चलते हैं और हमें लोग ताने देते, तंज़ देते हैं, तो दरअसल हमें तो डरना अल्लाह से है ना। जो मोमिनीन होते हैं वो अल्लाह से डरते हैं, ना कि लोगों के तानों से, बातों से, तंज़ से, है ना? किसी चीज़ से भी नहीं डरना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुज़ारना चाहिए। आइए देखिए, आयत नंबर 65 है। याद रखो कि आसमान याद रखो कि आसमान और ज़मीन में जितने भी जानदार हैं, वो सब के सब अल्लाह ही की मिल्कियत में हैं। और जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं, वो कोई अल्लाह के शरीकों की पैरवी नहीं करते हैं, और वो किसी चीज़ की भी नहीं करते, केवल गुमान की करते हैं। और उनका काम आइए देखिए, आयत नंबर 66। याद रखो कि आसमान और ज़मीन में जितने भी जानदार हैं, वो सब के सब अल्लाह की मिल्कियत में हैं, और जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं, वो कोई अल्लाह के शरीकों की पैरवी नहीं करते। वो किसी और चीज़ की ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुमान की पैरवी करते हैं, और उनका काम उनके सिवा कुछ नहीं कि ज़न यानी तीर के, यानी कि अंदाज़ों के वो तीर चलाते हैं। यानी कि गुमान ऐसा करते हैं, ज़न, और अपने मन की बातों की पैरवी करते हैं ना, मनगढ़ंत बातों की पैरवी करना ही दरअसल क्या है? ज़न और गुमान की पैरवी करते हैं। जो सामने हक़ है, उसकी पैरवी नहीं करते। तो आयत नंबर 65 से 66 में और 67 में जो शिर्क की बुनियाद है ना, वो दरअसल क्या है? वो यकीन नहीं, वो गुमान है, इसके बारे में बताया गया है। यानी जो लोग अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक ठहराते हैं ना, उनके पास कोई भी इसकी कोई दलील नहीं है। कोई भी प्रूव नहीं है उनके पास। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी सोच है और आबा व अजदाद की एक पैरवी है। और दरअसल क्या है, आबा अजदाद के पास भी तो ये कहाँ से आया ना, तो उन्होंने तो बस एक सोच लिया, एक उनके पास गुमान हो गया, एक उनके पास उन्होंने एक सोच और मनगढ़ंत बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो यही यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वो लोग जिस चीज़ की पैरवी करते हैं, वो क्या है? बेसनद, बेख़याली इन बातों की इत्तिबा करते हैं। उनके पास तो क्या है, सिर्फ़ ये अटकलों की वो पैरवी करते हैं, और जो हक़ वाज़िह है उसकी वो इत्तिबा ही नहीं करते हैं, उसकी पैरवी ही नहीं करते हैं। ठीक है? आयत नंबर देखिए, आयत नंबर 67। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो, और दिन को ऐसा बनाया जो तुम्हें देखने की सलाहियतें दे। इसमें यकीनन उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर से सुनते हैं। तो जो गौर से सुनते हैं वो दरअसल क्या होते हैं? वो अकल वाले होते हैं। वो गौर फिक्र की तरफ दावत दी जा रही है।
और दरअसल क्या है, एक इससे ये बात पता चलती है कि जब भी दावत दी जाए, आपको कोई बात समझाई जा रही है तो उसको क्या करना, गौर से सुनना है। तो गौर से सुनने की वजह से क्या है, हिदायत मिलती है। तो वास्ते उस कौम के लिए जो सुनने वाली है, लिक़ौमी यस्माऊन, जो सुनने वाली, वो भी गौर से सुनने वाली सिफ़ात बताई गई है। आयत देखें, आयत नंबर 68। कुछ लोगों ने कह दिया कि अल्लाह औलाद रखता है, पाक है उसकी ज़ात, वो हर चीज़ से बेनियाज़ है। आसमान और ज़मीन में जो कुछ है उसी का है। तुम्हारे पास इस बात की ज़रा भी कोई दलील नहीं है। क्या तुम अल्लाह के ज़िम्मे वो बातें लगाते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं है? तो यहाँ अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमा दिया है कि ये जो लोग जो बातें करते हैं ना, ये सब क्या है, इनका ज़न और गुमान है ना, उनकी सोच है, ख़याल है, अटकलें हैं। और अल्लाह सुब्हाना तआला तो पाक है, अल्लाह ताला के साथ कोई भी औलाद नहीं है ना। आप देखिए कि जब आसमान और ज़मीन की हर चीज़ जो है ना अल्लाह ही की मिल्कियत में है, सब कुछ, सब सारे की सारी मखलूक अल्लाह की ग़ुलाम है, फिर उसे औलाद की कैसे ज़रूरत हो सकती है ना? औलाद की ज़रूरत तो उसे होती है, जिसे कुछ मददगार चाहिए होती है, सहारों की ज़रूरत होती है। इंसान को ये होता है कि चलो भाई हम जब बूढ़े हो जाएँगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। अक्सरों की यही अल्फ़ाज़ होते हैं ना, कि बेटा हो जाता तो वो मेरे बुढ़ापे का सहारा होता, या एक औलाद ही हो जाती मेरी बुढ़ापे का सहारा होती। क्योंकि उसके पता है कि एक इंसान की कमज़ोरी क्या है, जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद क्या है, मौत वाक़ई हो जाती है। तो उसको डर होता है कि मेरे पीछे जो है मेरी जो वारिस कोई हो, जो मेरी प्रॉपर्टी सँभाले, मेरा सामान सँभाले, मेरी जो आबा व अजदाद का ज़मीन, खेत, बाग है ना, ये सब कुछ बिज़नेस वग़ैरह ये सब सँभाल ले। लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला तो पाक है, अल्लाह सुब्हाना तआला तो जो है उसे किसी सहारे और मदद की ज़रूरत ही नहीं है। और जिसका हुक्म आसमान और ज़मीन की हर चीज़ पर चलता हो, उसे औलाद की ज़रूरत कैसे हो सकती है? औलाद की ज़रूरत तो वो शख्स भी महसूस करता है ना, जो अपने बाद ममलूकात का वारिस देखना या बनना पसंद करता हो। और अल्लाह ताला की ज़ात तो फ़ना होगी ही नहीं। इसलिए अल्लाह के लिए औलाद करार देना इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिरुल जिबालु हद्दा अन दाउ अ, अन दाउ लिर्रहमानी वलदा। सूरह मरियम आयत नंबर 90 और 91 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इस बात के बारे में इनसे कह दीजिए कि वो कहते हैं कि रहमान की औलाद है, करीब है कि आसमान फट पड़े और ज़मीन फट जाए, यानी शक़्क़ हो जाए और पहाड़ रेज़ा-रेज़ा हो जाए। इतनी बात वो, ऐसी बात अल्लाह के बारे में वो अपनी ज़बानों से जो गढ़ते हैं, ये कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ने बेटा जना, है ना? अल्लाह औलाद रखता है। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो क्या है, वो पाक है। उसकी कोई औलाद नहीं है। वो किसी कमज़ोरी, कोई कमज़ोरी उसके अंदर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर कोई भी वीकनेस नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं है। ना उसे नींद आती है, ना ऊँघ आती है, ना उसके ऊपर मौत वाक़ई होगी। तो जो उसको औलाद की ज़रूरत होगी ना, आप देखिए कितनी बड़ी इंसान जो है ना, गौर फ़िक्र ना करने की वजह से और आबा व अजदाद की दीन की पैरवी करने की वजह से लोग कैसी-कैसी बातें करते हैं ना, अल्लाह के बारे में ऐसे-ऐसे बात जो कहते हैं, वो दरअसल क्या है, इन्हीं की जो गुमराही है ना, उसी का नतीजा है, अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहना। तो आप देखिए कि आयत नंबर 68 से 70 तक अल्लाह को औलाद की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है? तो उन आयात में गुमराहकुन तसव्वुर की नफ़ी की गई है। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद जनी। हुँ? अल्लाह ताला इन बशरी कमज़ोरियों से पाक है। उसे बुढ़ापे में औलाद के सहारे की और मरने के बाद नस्ल जारी रखने की के लिए किसी औलाद की ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग अल्लाह की तरफ औलाद मंसूब करते हैं, वो बदतरीन झूठ गढ़ रहे हैं। झूठे हैं वो लोग। आयत देखिए, आयत नंबर 69। कह दीजिए कि जो लोग अल्लाह पर झूठा बहतान बाँधते हैं, वो फलाह नहीं पाएँगे। यानी जिन्होंने कहा कि अल्लाह औलाद रखता है ना, तो वो लोग क्या है, फलाह नहीं पाएँगे। तो ये फलाह, वो फलाह की बात नहीं की जा रही है जो दुनियावी है। ये फलाह आखिरत के बारे में कहा जा रहा है। दुनिया में तो वक़्ती तौर पर उनको खाना-पीना, रहना, कामयाबी, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ मिल जाएगी। लेकिन आखिरत में ऐसे लोगों को कोई भी फलाह नहीं है, कोई भी कामयाबी नहीं, जिन्होंने अल्लाह पर जो है ना झूठ और बहतान गढ़ा। आयत देखिए, आयत 70। उनके लिए तो बस दुनिया में थोड़ा-सा मज़ा है, फिर हमारे पास उन्हें लौट कर आना है। फिर कुफ़्र का जो रवैया उन्होंने अपना रखा था, उसके बदले हम उन्हें सख्त तरीन अज़ाब का मज़ा चखाएँगे। जो कुफ़्र करते थे ना तुम, जब रसूल तुम्हारे दरमियान आए, तुमने क्या कहा? नहीं, अल्लाह का तो बेटा है, और जो तुम पैगाम हमारे पास ला रहे हो तौहीद का, ये दरअसल क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह का बेटा है, ऐसे ना, जो तुमने झूठ गढ़ा है, जो तुमने अंबिया के साथ कुफ़्र किया है, जो तुमने अल्लाह की तौहीद का तुमने जो कुफ़्र किया है, तो बस आखिरत में क्या तुम्हारे लिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ हमेशगी के लिए जहन्नम है, जो तुम्हारे कुफ़्र का ही रिज़ल्ट है। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें अपने अंजाम का मज़ा चखना ही चखना है, जो तुमने किया है।
तो यहाँ पे उन्हीं के बारे में फरमाया जा रहा है। आइए देखिए आयत नंबर 72। आइए देखिए आयत 71। और पैगंबर उनके सामने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़कर सुनाइए। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह तुम्हारे अगर तुम्हारे बीच में मेरा रहना और अल्लाह की आयतों के जरिए खबरदार करना तुम्हें भारी मालूम हो रहा है, तो मैंने तो अल्लाह ही पर भरोसा कर रखा है। अब तुम अपने शरीकों को साथ मिलाकर अपनी तदबीरों को खूब पुख्ता कर लो, और फिर जो तदबीरें तुम करो वो तुम्हारे दिल में किसी घुटन का वजह ना बने, बल्कि मेरे खिलाफ जो फैसला तुमने किया हो उसे कर गुजरो और मुझे जरा भी मोहलत ना दो। तो आयत नंबर 71 से आयत नंबर 73 तक नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। इन आयात में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो है ना पुरसोज नसीहत का जिक्र हुआ है। उन्होंने अपनी तबलीग के आखिरी दौर में तबलीग का, जब उनकी कौम में आखिरी दौर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो उसका यहाँ पे पस मंजर खींचा गया है। तो उन्होंने अपनी तबलीग के जो आखिरी दौर में कौम के सामने जो पेश किया, उन्होंने अपनी कौम से कहा कि देखो, अगर मेरा तुम्हारा नसीहत करना पसंद नहीं आता है तो तुम क्या करो, मेरे खिलाफ प्लानिंग कर लो, साजिशें कर सकते हो और तुम कर भी सकते हो। अगर तुम्हारा ज़मीर तुम्हें ऐसा करने से रोके तो सोचो कि मेरी तबलीग बेगर्ज और बे जो है खुलूस पर मबनी है। मेरी तबलीग क्या है? बिना किसी गरज और खुलूस यानी इखलास पे मबनी है। मैंने तो तुमसे कभी कोई मुआवजा नहीं मांगा, तुमसे कोई भी मुझे अजर नहीं चाहिए। मेरा तो अजर अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह के पास है मेरा अजर, और मेरा तो अजर तो बस अल्लाह ही मुझे देने वाला है। कौम ने जो है ना नूह अलैहि सलाम की बात नहीं मानी। फिर आखिर अल्लाह तबारक तआला ने जो है नूह अलैहि सलाम ने दुआ की कि अल्लाह इनको फना कर दे, इनको तू खत्म कर दे, तो इनको हलाक कर दे। तो अल्लाह तबारक तआला ने बिलाखिर पूरी कौम को एक तूफान के जरिए हलाक कर दिया। ठीक है। आयत देखिए आयत नंबर 72। फिर भी अगर तुमने मुंह मोड़े रखा तो मैंने तुमसे इस तबलीग यानी अल्लाह के अहकामात पहुंचाने पर कोई उजरत तो नहीं मांगी है। मेरा अज्र किसी और ने नहीं, अल्लाह ने जिम्मे ले लिया है, और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं फरमाबरदार लोगों में शामिल रहूं। तो ये नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से जो बात कही थी उसी के बारे में यहाँ जिक्र है। आइए देखिए आयत नंबर 73। फिर हुआ ये कि उन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया, और नतीजा ये हुआ कि हमने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को और उन जो लोग उनके साथ कश्ती में थे उन्हें बचा लिया, और उन काफिरों की जगह जमीन को बसाया, यानी उनको यानी मुसलमानों को और नूह अलैहिस्सलाम को काफिरों की जगह जमीन पर बसा दिया। और जिन लोगों ने हमारी निशानियों को झुटलाया था उन्हें तूफान नूह में गर्क कर दिया गया। अब देखो कि जिन लोगों का खबरदार किया गया था ना, उनका अंजाम फिर कैसे हुआ। यानी कि अहले मक्का जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजाक उड़ाते थे ना, और जो लोग भी अंबिया पे मजाक उड़ाते थे, उनकी बात नहीं मानते थे, उन सब के लिए यहाँ पे इबरत है। तो चाहे वो 1450 साल पहले के लोग हों, और चाहे आज के लोग हों, और चाहे आने वाले जो भी लोग हैं जो जिन्होंने भी अंबिया का रसूलों का मजाक उड़ाया, तो ऐसे वाकयात लाके उनके लिए क्या है, उनको नसीहत की जाती है, उनके लिए इबरत के निशान बताए जाते हैं कि तुम्हारे लिए देखो इसमें इबरत है, तुम इसमें जो है सबक लो, सबक सीखो। जिन्होंने रसूलों की बात नहीं मानी उनके साथ क्या हुआ अंजाम, कि वो उन्हें पूरा पूरा गर्क कर दिया गया। और आप देखिए कि आज जो है ना साइंटिस्ट बताते हैं ना, उन्होंने रिसर्च किए, साइंटिस्ट कहते हैं कि जमीन पर ऐसा एक वक्त आया है, जब इब्तिदा में जब जमीन की शुरुआत हुई थी, दुनिया की शुरुआत हुई थी, तो पूरी दुनिया जो थी पानी में डूब चुकी है। तो इसका जो हम लोग डिटेल में इंशाल्लाह सूरह नूह में पढ़ेंगे, नूह अलैहि सलाम के वाकये के बारे में। ये मुख्तसर सा है कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी उम्मत को, अपनी जो कौम थी उनकी जो कौम की तरफ भेजा गया, उनको तबलीग की 950 साल, और उन्होंने और उनकी उम्र 1050 साल थी, और फिर भी उनकी जो कौम थी उनकी बात नहीं मानी, उनका मजाक उड़ाती रही, उनके ऊपर जो है उनके ऊपर हंसी मजाक करते थे उनके कौम के लोग, और उनकी यकीन ही नहीं करते थे उनकी बात का। तो फिर आखिरकार उनको खत्म कर दिया गया, गर्क कर दिया गया। पानी ऐसा जो है आया सब तरफ से, ऊपर से भी पानी, बारिश का भी पानी था, और नीचे से पानी चश्मों से जारी हो गया, इतना पानी कि जैसे आज आपको बड़े बड़े पहाड़, आपको देखिए कितने कितने फुट के हैं ना वो पहाड़ भी सब डूब गए थे, इतना पानी हो गया था जमीन पे। आइए देखिए आयत नंबर 74। उसके बाद हमने मुख्तलिफ पैगंबर उनकी अपनी अपनी कौम के पास भेजे, वो उनके पास खुली खुली दलीलें लेकर आए।
लेकिन उन लोगों ने जिस बात को पहली बार झुठला दिया था, तो उसे मानकर ही ना दिया। जो लोग हद से गुज़र जाते हैं, तो उनके दिलों पर हम इसी तरह मोहर लगा देते हैं। वही बात है, जैसे कि जो लोग हैं ना, उनके दिलों पे मोहर कब लगती है? जब हक़ का इनकार करते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि इस आयत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले जो रसूलों का ज़िक्र है, और इन रसूलों में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुऐब अलैहिस्सलाम, और इन रसूलों को भी उनकी उम्मतों ने खूब झुटलाया। बार-बार समझाने के बावजूद जब वो सरकशी में हद से गुज़र गए, तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर क्या किया? मोहर लगा दिया। यानी जिस किसी के पास भी, अब आप देखिए, उनके ऊपर उन्होंने रसूलों को झुटलाया और उनके दिलों पर मोहर लग गई। अब हमारे सामने अल्लाह की आयत, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की हदीस बार-बार आती है, तब भी हम उसको नहीं मानते, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, उसको हम झुटलाते हैं, नहीं ऐसा हमारा दीन सख्त नहीं है, नहीं हमारा दीन ऐसा सख्त नहीं, तो आखिरी में रिज़ल्ट क्या होता है? खुद उसी इंसान के दिलों पर मोहर लगा दी जाती है। फिर उसे अच्छी बात उसको समझ भी नहीं उतरती, और फिर क्या है, फिर वो बुराई की तरफ उसकी जो है रहनुमाई कर दी जाती है, और अच्छाई के कामों से उसको रोक लिया जाता है। तो दिलों पर मुहर लगने से ये रिजल्ट होता है कि इंसान ईमान लाने की सादत से महरूम हो जाता है। तो इनकी कौमों ने भी क्या हुआ, इनकी कौम में भी ऐसे ही हुआ। आयत देखिए, आयत नंबर 75। उसके बाद हमने मूसा और हारून को फ़िरौन को और उसके सरदारों के पास अपनी निशानियाँ देकर भेजा, तो उन्होंने तकब्बुर का मामला किया और वे मुजरिम लोग थे। आयत 76 देखें। चुनांचे जब उनके पास हमारी तरफ से हक़ का पैगाम आया, तो वो कहने लगे कि ज़रूर ये खुला हुआ जादू है। आयत नंबर 75 से आयत नंबर 70 जो 6 है, तो दरअसल इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम है और हारून अलैहिस्सलाम है, उनके बारे में ज़िक्र है। तो इन आयत में हज़रत जो मूसा अलैहिस्सलाम है और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ दरअसल कश्म-कश्म का बयान है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने आले फ़िरौन के सामने अल्लाह की दावत का पैगाम पेश किया ना, अल्लाह ने भेजा था उनके पास, तो अल्लाह के पैगामात को भेजा, तो उन्होंने इसे जो है जादू करार दिया। यानी कि जो मुआज़ा लेकर आए थे ना, अल्लाह ने कहा था मूसा अलैहिस्सलाम, आप जाइए फ़िरौन के पास, जो बड़ा सरकशी कर रहा है, उसके बाद उसके पास अल्लाह का पैगाम पहुँचाइए। तो मूसा अलैहिस्सलाम गए, उनको अल्लाह ने जो मुआज़े दिए थे, असा, यदा, बैदा, है ना? सारे मुआज़ात जो दिए थे उन्होंने, उसने जो फ़िरौन ने उसको देखने के बाद भी क्या कहा, ये तो सब क्या है? जादू है, तुम्हारा सब जादू है, ये सब कुछ नहीं है, कोई मुआज़ा नहीं है ना? तो दरअसल आप देखिए कि अपनी ये जो है ना, सामने हक आने के बाद उसने, वो जो फिरौन है, उसने इनकार कर दिया, जादूगरी का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि तुम दोनों भाई अपनी सरदारियां और बड़ाई कायम करना चाहते हो, यानी हमारा जो ये जो राजपाट है, इसे तुम ले लेना चाहते हो, तुम दोनों इसलिए ऐसा कर रहे हो। तो उन्होंने तमाम जादूगरों को जमा किया, यानी कि, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पेश करदा मौज़े को भी जादू का करार दे दिया, और उसको बातिल साबित करने के लिए पूरी पूरी पुरज़ोर कोशिश की। किसने? फिरौन ने। ठीक है। तो अल्लाह तबारक तआला ने उनकी चाल को उलटकर उनको उन्हीं की तरफ उलट फेर दिया और साबित कर दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ात दरअसल जादू नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से बरहक हैं। ये मुअज़्ज़ात हैं जो हर नबी को हर दौर में, उनके दौर में दिए गए हैं। तो उनके कौम के जो लोग थे, यानी कि जब उनका आमना-सामना हुआ, तो फ़िरौन ने और उनके जितने भी सरदार थे, उन सब ने कहा, ये तो दरअसल क्या है, ये तो जादू है, ये जादू लेकर आए हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 77। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम हक़ के बारे में ऐसी बातें कह रहे हो, जबकि वो तुम्हारे पास आ चुका है? भला क्या ये जादू है? हालाँकि जादूगर तो फलाह ही नहीं पाया करते हैं, है ना? यहाँ पे क्या पता चलती है बात, कि जादूगर कभी कामयाब नहीं होते, जादूगर कभी फलाह नहीं पा सकते हैं, ठीक है? तो कामयाबी किसके लिए नहीं है? जादूगरों के लिए नहीं है। आइए देखिए, आयत नंबर 77, आयत 78 है। कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि जिस तौर तरीके पर हमने अपने बाप-दादा को पाया है, उससे हमें बारगुश्ता कर दो और इस सरज़मीं से तुम दोनों की चौधराहटें कायम हो जाएँ। हम तो तुम दोनों की बात मानने वाले नहीं हैं। इस तरीके से जो फ़िरौन है ना, और उसके सरदारों ने इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर जवाब दिया। ठीक है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, दरअसल जिनको भेजा गया था जिनकी तरफ, यानी कि फ़िरौन की तरफ जो भेजा गया था, तो उन्होंने नहीं माना और ना ईमान लाए। आइए देखिए, आयत नंबर 79। और फ़िरौन ने कहा कि जितने भी माहिर जादूगर हैं, उन सबको मेरे पास ले आओ। आयत 80। चुनांचे जब जादूगर आ गए, तो हज़रत मूसा ने कहा कि फेंको जो कुछ तुम्हें फेंकना है, यानी जादू जो तुम करना है, तुम्हें अपना फेंकना फेंको।
फिर आया देखिए आयत नंबर 81। फिर जब उन्होंने अपनी लाठियां और रस्सियों को फेंका और वे सब सांप बनकर चलती हुई नजर आईं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जो कुछ तुमने दिखाया है ये सब क्या है? जादू है। अल्लाह ताला अभी इसको मलियामेट कर देता है, यानी कि खत्म कर देता है। तो अल्लाह तबारक ताला फासिदों का काम बनने बनने नहीं देता है। आयत 82। और अल्लाह सच को अपने हुक्म से सच कर दिखाता है, और चाहे मुजरिम लोग कितना ही बुरा जो है समझे। आयत देखिए आयत 83। फिर हुआ ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोई और नहीं लेकिन खुद उनकी कौम के कुछ नौजवान फिरौन और अपने सरदार से डरते डरते ईमान ले आए। यानी फिरौन और अपने सरदारों से डरते डरते वो ईमान ले आए, कहीं फिरौन उन्हें ना सताए। और यकीनन फिरौन जमीन में बड़ा जोरावर था, और वो उन लोगों में से था जो किसी हद पर कायम नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग की और जो है ना, ईमान की बात पहुंचाई लोगों में, तो उनमें से जो अक्सरियत जो थी उन्होंने इनकार किया, लेकिन उनमें से जो यूथ थे, नौजवान लोग थे, वो ईमान ले आए। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बात पर क्या कहा? लब्बैक कहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम दरअसल फिर कौम फिरौन की तरफ भेजे गए थे, ठीक है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से जो हक को अव्वल अव्वल कबूल करने वाले जो चंद मोमिन जो थे, चंद नौजवान थे, जो दरअसल किसमें से थे? कौम फिरऔन में से थे। और बाकी कौम फिरौन अपनी जो है ना, और कौम में मौजूद फिरौन के एजेंट सरदारों के जुल्म और सितम से खौफजदा हो गई। यानी कि जो जो कौम फिरौन जो थे, कौम फिरौन में भी अल्लाह ने तबलीग के लिए भेजा था ना, फिर मूसा अलैहिस्सलाम को। तो कौम फिरौन में से कुछ नौजवान जो यूथ थे वो ईमान ले आए, लेकिन बाकी जो उनकी कौम फिरौन के जो लोग भी थे, तो वो भी जो थे फिरौन और उसके सरदारों से डर के मारे ईमान नहीं लाए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हीं की तरफ इशारा है कि वो ऐसे लोग थे कि वो फ़ौरन ईमान लिया मूसा अलैहिस्सलाम के मुअज्ज़ा देख कर के। उन्होंने कह दिया कि हम ईमान लाते हैं मूसा और हारून के रब पर। जादूगर ईमान लाए, उनके बाद भी क्या हुआ? इससे बात पता चलती है कि कौम फ़िरौन के कुछ लोग थे, वो भी ईमान ले आए थे, मुसलमान हो गए थे। तो और आप देखिए कि ख़ास करके नौजवान, तो किसी भी आप देखिए कि जब भी तबलीग करते हैं, तो इससे क्या पता चलता है, जो सबसे सबसे ज़्यादा असर जो तबलीग का होता है, वो नौजवान पर होता है। तो खास करके यूथ पर भी क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंसान को फ़ोकस्ड करनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक जो जवान होता है तो उनके अंदर क्या होता है, जोश होता है हर, और सच और जो है हक उनके सामने जो अगर पेश किया जाए तो वाक़ई में वो सच का ही साथ देते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से ये जो लोग थे, ये नौजवान लोग थे, और उन्होंने पूरा जो मूसा अलैहि सलाम की बात पर क्या किया, समीना व अताना किया। तो फ़िरौन और उनके दरबारी और हुक्काम के जो तकलीफ पहुँचने का जो डर था, फ़िरौन की जो कौम में जो थोड़े से आदमी थे ना, उनके आबा व अजदाद यानी कप्ती और उनकी माएँ बनी इसराइल से थी। और फिर आप देखिए जो साद बिन अबी वक्कास का जो खून पहली दफ़ा इस्लाम की राह में जो बहा, ये सबसे पहले ऐसे सहाबी थे। और दरअसल ये क्या थे, ये नौजवान नस्ल के थे, अपनी जानों का उन्हें डर नहीं होता था। किसी कौम में जब तब्दीली अगर इंसान को लाना है, तो नौजवान नस्ल तक क्या करना है, उनको तबलीग करना है। और उनको किससे जोड़ना है? दीन से जोड़ना चाहिए। तब क्या होता है कि एक जो है ना क्रांति आती है ना, बदलाव आता है, चेंज होता है। आप देखिए कि हमारे क्या मिसाल भी मौजूद है कि जब हमारे क्या जब इनकलाब हुआ था, तो सबसे पहले जो नौजवान तबका था ना, वही सबसे पहले सामने आया था, नौजवान यूथ। और वही किसी भी माशरे को चेंज कर सकते हैं। और आप देखिए ये तो हमारा कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यहाँ बताया गया है कि मूसा अलैहि सलाम का जो यहाँ बात हो रही है, तो ये तो काफ़ी पुरानी बात है। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी जो जहाँ पे ज़ुल्म और सितम हो रहा है, उसको चेंज करने के लिए यूथ क्या होता है, उसका एक अहम इम्पोर्टेंट रोल होता है कि यूथ की अकल और फ़हम और दानाई होती है। वो समझ सकता है कि हक क्या है और बातिल क्या है, वो हमेशा सच का साथ देता है। तो इसीलिए कुरान और हदीस की बात को भी यूथ के बीच में बहुत ज़्यादा उनको इससे मोटिवेट करना चाहिए, उनको इससे जोड़ना चाहिए यूथ को। आयत देखिए आयत नंबर 84। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान ले आए हो, तो फिर उसी पर भरोसा रखो, अगर तुम फर्माबरदार हो। आयत 85 देखिए। और इस पर उन्होंने कहा कि अल्लाह ही पर हमने भरोसा कर लिया है, ए हमारे परवरदिगार, हमें इन जालिमों लोगों के हाथों से आजमाइश में न डालना। तो यहाँ पर जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है ना, उनके बारे में बताया जा रहा है।
कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, अल्लाह ही पर भरोसा तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, तुम ईमान ले आए, तुम्हें अब क्या करना है, तवक्कल अल्लाह करना है। अब तुम्हें फ़िरौन के जो ज़ुल्म से नहीं डरना है, लोगों के डरावों से नहीं डरना है, जो तुम्हें लोग प्रेशर डाल रहे हैं, तुम्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तुम्हें किसी चीज़ से नहीं डरना, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पे यकीन करना, अल्लाह पे भरोसा करना है। तो फिर इन जो जो यूथ थे, जो जो ईमान लाने वाले थे, उन्होंने फिर क्या दुआ की कि अल्लाह कि रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह ताला आप ना हमने आप ही पर तवक्कल किया है, भरोसा किया है, बस हमें अल्लाह हमें ऐसे ज़ालिम लोगों के लिए फितना ना बनाइएगा। ठीक है? तो इसके 2 मतलब हैं, कि पहला ये मतलब है कि हम पर ज़ुल्म ना करिए और दूसरा मतलब ये काफ़िरों के कुफ़्र और सरकशी में इज़ाफ़े का सबब हमको ना बनाइए। ठीक है? तो ये है दुआ है, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। तो इन मोमिनों की ये दुआ थी और अल्लाह तबारक तआला ने कबूल भी फरमाई। आयत 86। और अपनी रहमत से हमें काफ़िर कौम से निजात दे दीजिए। और उन्होंने क्या दुआ की? वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफ़िरीन, कि अल्लाह मुझे इन काफ़िर कौम से निजात दे दिए। आइए देखिए आयत 87। और हमने हज़रत मूसा और उनके भाई पर वही भेजी कि तुम दोनों अपनी कौम को मिस्र के ही घरों में बसाओ और अपने घरों को नमाज की जगह बना लो और इस तरह नमाज कायम करो और ईमान लाने वालों को खुशखबरी दे दो। तो इससे ये बात पता चलती है कि अल्लाह ने जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम लोग क्या करो, वो लोग दुआएँ कर रहे थे, है ना? दुआ कर रहे थे, फिर अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि जो लोग ईमान ले आए हैं, जो मुसलमान हो गए, तुम लोग क्या करो, अपनी-अपनी घरों को अब तुम मस्जिद बना लो। मस्जिद बनाओ और अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के लिए अपने दीन को खालिस कर लो। तो इससे पता चलता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे मिस्र में ही थे, फ़िरौनियों के बीच में ही थे, तो उन्होंने अपनी-अपनी घरों को क्या कर लिया था, मस्जिद बना लिया था। जैसे क्वारंटाइन में हुआ ना कि मस्जिद में ताला लग गया, नहीं जा सकते हैं, तो सबने अपनी-अपनी घरों में एक कमरा, एक रूम को क्या किया, मस्जिद बना लिया। तो हालात और सिचुएशन के हिसाब से अपने घरों में भी क्या करना चाहिए, एक मस्जिद को कायम करना चाहिए, जहाँ पे इंसान क्या करे, अल्लाह को याद करे। आप देखिए कि आप सब जगह मस्जिदें नहीं होती, बहुत से ऐसे इलाके होते हैं जहाँ उनके घरों से मस्जिद दूर होती है, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए, एक अपने घर का छोटा-सा एक जो है ना कमरा है या हॉल है या छोटी-सी जगह है, उसको अल्लाह के सजदों के लिए और मस्जिद के लिए क्या करे, उसको लिख दे, मतलब कर दे उसको, कि ये जो जगह है, ये अल्लाह के सजदे के लिए जगह है। तो स्पेशल ख़ास जगह का एहतमाम करें कि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की मस्जिद बनाई जाए, वहाँ पे अपने घर में के एक जो कोना है, तो फिर क्या होगा, उसमें भी अल्लाह की इबादत हो और हर वक़्त अल्लाह का ज़िक्र होता रहे, है ना? तो आप देखिए पूरा घर बनाने का भी सवाब होगा कि उसमें मस्जिद जो बनाई गई। एक सहाबी थे, तो उन्होंने अपने घर में जो है ना खिड़की बना ली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जो है तुमने जो है ना जो है उनका जो भी नाम था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। उन्होंने कहा तुमने जो ये मस्जिद जो तुमने अपनी दीवार पे जो खिड़की बनाई ये किस लिए बनाई है? तो उस साहबी ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैंने इसलिए खिड़की बनाई है ना कि ताकि मुझे जो इधर से जो ठंडी-ठंडी हवा आती है ना, इसलिए ये ठंडी-ठंडी हवा आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू इसलिए नियत करता, मस्जिद में तूने इसलिए मतलब कि तूने खिड़की बनाई, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर तू ये नियत करता कि मेरी जो है खिड़की मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे अल्लाह की जो मस्जिद है इधर से ना अज़ानों की आवाज़ सुनाई दे और मैं मस्जिद को भी देख सकूँ इधर से, तो फिर क्या है, तेरे लिए बाइसे ये जो खिड़की है अजर बन जाती, बाइसे इबादत लिख दी जाती, है ना? सिर्फ़ छोटी-सी नियत कि उसने क्या नियत की कि ठंडी-ठंडी हवा आए। या अगर वो इस नियत से बनाता कि मुझे अज़ानों की आवाज़ सुनाई दे कि मैं मस्जिद में देख सकूँ या मस्जिद में जमात तो नहीं हो रही है ना, सवाब इबादत की नियत से, तो फिर वो खिड़की बनाना क्या होता है, इबादत में लिख दिया जाता। ये छोटी-सी बस नियत कर ले इंसान। इसीलिए अपने घरों में भी क्या करे, एक मस्जिद बनाए इंसान, उसमें अल्लाह की इबादत करे, तो फिर क्या है, पूरा घर का जो घर बनाना भी है, वो भी क्या है, इबादत में लिख दिया जाएगा, क्योंकि उसने अपने घर में क्या की, एक छोटी-सी मस्जिद अल्लाह के लिए बना ली। जो है सब घर वाले मिल कर के जमात से पढ़े नमाज़ अपने घरों में ना। तो देखिए कभी बारिश होती है या बहुत ठंड होती है, तो फिर जो मर्द हज़रात हैं वो भी नहीं जा पाते मस्जिद में, या तकलीफ़ है, किसी की बीमारी है, तो अपने घर में छोटी-सी जगह बना ले ताकि सब लोग एक साथ इकट्ठे नमाज़ पढ़ सकें। ठीक है? आयत देखिए, आयत नंबर 88, आयत नंबर 88 से आयत नंबर 89 तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की और आले फ़िरौन के खिलाफ बद्दुआ है। आयत देखिए, आयत 88 है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए हमारे परवरदिगार, आपने फ़िरौन और उसके सरदारों को दुनियावी ज़िंदगी में बड़ी साज-धाज यानी शान-ओ-शौकत और माल और दौलत बख्शी है। ए हमारे परवरदिगार, उनके माल और दौलत को तहस-नहस कर दीजिए और उनके दिलों को इतना सख्त कर दीजिए कि वो इस वक़्त ईमान नहीं लाएँ और जब तक दर्दनाक अज़ाब आँखों से ना देख लें। तो ये किसने दुआ की? मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की।
تو موسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے سے کس لیے دعا کی؟ جو فرعون ہے اور سرکش جو قوم تھی ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ فرعون اور اس کی قوم پر اس نصیحت کا، اللہ کے پیغام کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو اس طرح پھر معجزات دیکھ کر بھی جب ان کے اندر کوئی بھی چینج نہیں آیا، تبدیلی نہیں آئی، پھر ان کے جو ہے نا ان کے اوپر حق کی جو ہے قبول نہ کرنے کی وجہ سے رسول نے ان کے اوپر بد دعا فرمائی، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ نقل فرمایا ہے۔ کیا دعا کی انہوں نے؟ کہ انہوں نے دعا کی، اے اللہ ان کو کیا کریں آپ؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا کی اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے دنیاوی زندگی میں جو شان و شوکت ہے، مال دولت ہے، جو سب کچھ آپ تہس نہس کر دے، ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ وہ ایمان ہی نہ لائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ قبول ہو گئی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 89 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، اب تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلنا جو حقیقت سے ناواقف ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، کیونکہ دعا بھی کس کی تھی نا؟ انبیاء کی تھی، تو ہر نبی نے جو جو دعا کی ہے وہ اسے قبول فرما لیا گیا۔ اور اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا کرنا؟ فاستقمنا ولا تتبعان، اور تم دونوں ثابت قدم رہنا، اور تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ تو یہاں پر اس سے مراد جو دوسرے جو شخص موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جو دوسرے شخص کون ہے؟ ان کے ساتھ جو ان کے بھائی ہارون تھے نا، ان کے ساتھ دعا میں وہ شامل تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، موسیٰ اور ہارون کی جو دعا بد دعا تھی فرعون کے حق میں۔ اور آپ دیکھیں یہاں فاستقمنا جو الفاظ آیا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنی بدعا پر تم قائم رہنا، اور اس کے ظہور یا تاخیر ہو جائے تو کیونکہ نا تمہاری دعا یقیناً قبول کر لی گئی، لیکن ہم اسے عملی جامہ کب پہنائیں گے؟ یہ خالص ہماری مشیت اور حکمت ہے۔ بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس دعا کے 40 سال کے بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک کر دی گئی، اور بددعا کے مطابق فرعون جب ڈوبنے لگا نا تو اس وقت بھی اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، ایمان لانے کا اس نے اعلان کیا، جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا یہ ہے کہ استقامت کا، کہ تم اپنی تبلیغ اور دعوت اور بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی، اور اس رہنمائی پر اور فرعونیوں کی غلامی سے نجات دلانے کی جد و جہد پر تم کیا کرو؟ ثابت قدم رہنا، جاری رکھنا اس جد و جہد کو، تو اس کا یہ مفہوم ہے۔ اور ایمان والوں کو بھی ثابت قدم رہنے کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے جس فیلڈ میں تم نے قدم رکھا ہے نا، جو تم نے ہدایت کے راستے پہ قدم رکھ دیا ہے، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ استقامت رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، کبھی بھی اس راستے سے اپنے پیر نہ ہٹانا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔